Good morning, Poonam ma'am. Sorry, good evening. Good evening, Poonam ma'am. Hello. Good morning, Nobody sir. can hear you. Good morning, ma'am. Hello, good evening, Beta. How are you, Abhi? I am fine. How are you, ma'am? I'm good, good. Rushiti, I just wanted to try once the PPT thing. I want to run it myself, but then I want to give it a slight try. Can I do that? Yes, ma'am, sure. Yeah. Hello, Rishita. How are you, Beta? Hello, ma'am, I'm fine. Am I audible? Is my voice clear? Yeah, it's quite clear. Okay, share screen. 1 minute. This is the thing. I will leave it like this. Then what was the next step? It was like this. Yeah. And then I have to scroll up and down. Fine. Is it the way? Yes, ma'am. Yeah, I think that's good enough. Okay, wait. Oh, what is happening? That's Well, begin at sharp at 5. Yes, ma'am. We will start at 5 o'clock. Yes. So let's stop sharing right now. Let it be so people will know that they are in the right session. No worries. Okay, fine. That's okay. Sometime.
Can't hear anything. Excuse me, ma'am. Yes, Peter. Ma'am, actually, it is a problem. I don't have my parents at home. Okay. So, what are you? So, Rishiji, shall we begin? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can begin, and people will keep joining. No worries. Yes, we have already 22 people and 5 o'clock. Yes. Okay, fine. Shall I? Yeah. Good evening, everybody. I'm Rishita Kulati, and I'm going to introduce you to this session's esteemed speaker, Mrs. Poonam Kamdar, ma'am. Mrs. Poonam Kamdar, ma'am, is a counseling psychologist trained for educational and vocational guidance and counseling under NCERT. With a vast experience of counseling in educational setups for more than 25 years, she now works as a freelance consultant for schools and conducts a plethora of interactive sessions and workshops for students, parents, as well as teachers. Her audience ranges from people of all age groups and backgrounds from all around the world. Ma'am has been involved with numerous well performing organizations. She has been a consultant with the Times of India, NIE, and a panelist for various talk shows and sessions for big names like the All India Radio, Hindustan Live Media.com, Getty, that is the Global Education and Training Institute, DIET, that is the District Institute of Education and Training, LEAD for Ment Opine, Psychology, and the list goes on, where she talks about all sorts of psychological and social issues like stress, anxiety, parenting, dealing with exams, etc. She was one of the esteemed panelists at the 13th ED Leadership International Education Roundtable Virtual Conference organized by Getty, which was attended by principals and educators from 40 plus countries from all over the world. Recently, she gave a live interview with the Bharatiya Sahitya Sangathan (BSS) and has also organized motivational talks for cancer survivor groups, yoga groups, and senior citizen groups. Her views on such topics are also published in various articles of leading newspapers and magazines like the Times of India, Hindustan Daily, Dainik Jagran, Hind, Career Times, Vanita, Educare, Jagran Sakhi, Children's World, etc. Ma'am is also very passionate about mental health awareness and is a mentor for Psychology Wellness Private Limited, an organization that works for the same. She is also a part of a team that provides psychological support to cancer patients and survivors in hospitals of Delhi. Being an active member of the Delhi Laughter Club, Rohini, ma'am believes as well as promotes the notion that laughter therapy comes as a rescue to the stress in the today's world. Her strong theoretical and experiential knowledge has been used by IGNOU, NCERT, SCRT Delhi, etc.
in building programs and instructional material, and she is currently compiling all of her knowledge and counseling experience with an aim for it to reach out the maximum capacity of students, teachers, as well as parents. I would now like to invite ma'am to take over from here. Oh, thank you so much, Rishika. Am I audible clearly? Yes, ma'am. Okay. Thank you so much for such a wonderful introduction, and it was sounding really very good. Thank you once again. Okay, now yes, the topic that is being chosen for today is the challenges of parenting, and I'm sure those who are the parents here, those who are the kids, and those who've been seeing their parents working so hard for them, and even the grandparents, those who are here, they can really relate themselves with this particular topic. It's one of the I mean, everyone can identify with this topic in some way or the other. Now, if I talk about the challenges of parenting, I mean, people may say that har samay to challenges hote the. Even during our time, we had the challenges. But somehow everyone feels that the challenges of today's parenting is really, it's sort of a mammoth task, which is unless and until you are really concerned about and you're taking care of it, I think that the things may go a lot, stay haywire here and there, and you'll be at a total loss. You know why? Because the thing is, kids today are really very smart. When I'm saying smart, it is smart in a very good sense. I mean, they are demanding. They know their rights. They know what is good for them. They know how to take it, and they know very well to use technology, which is actually we are not adept at it, and we are at a loss at it. And today's scenario, when we are talking about the lockdown, yes, we tell our children to be resilient. Our kids have already learned to be resilient. They are facing and they have faced quite a bit of the lockdown time period when so much was expected and uncertainties have prevailed. But then I can see the children rising up. Why? Because the parents, they have given them the emotional cushion against which they can relax and they can emerge as better human beings. So now coming down to the challenges of parenting and what the new age parenting skills. It frankly boils down to something I would like to say in a very simple terms. जैसे आजकल बच्चे कहते हैं ना, ये तो आप पानी बॉईल करते थे या पानी मटके में भरते थे. ठीक है, it's a good concept. But आजकल किसके पास इतना टाइम है कि पानी को बॉईल करके ठंडा करके पिए? Those things have become redundant. Similarly, the syllabus for the parenting that we have been using in the yesteryears have become redundant, outdated. And if we do not move with the times, we will be left behind, beating our own drums, and our kids will move in front of us, and we'll be not able to do anything about it. So this session has been weaved in such a way so that you can relate, you can identify, you can find some solutions, and you can give your children the best at the same time, keeping your own mental health and your own well-being into consideration. So first of all, if I talk about 1 minute, why is the slide not moving? Just 1 minute. Not able to move my slide. Yeah. First of all, parenting styles I would like to share here with you all. During our times also, अगर हम बात करते हैं पहले के उसमें, these are the basic parenting styles जिसमें से थोड़े और varied versions निकल के आए हैं. We have these 5 over here: authoritarian, the attachment, the permissive, the free range, and the uninvolved. अब authoritarian का तो हम सब अच्छे से relate कर सकते हैं, जो 40s की एज ग्रुप में है, या और पहले अगर हम 70s की एज ग्रुप में 60s में है. मतलब अगर पापा ने या मम्मी ने कोई बात कह दी तो वो बात पत्थर की लकीर है, whether it is right or wrong. मतलब I have faced this kind of a scenario in my own workplace. I could not say anything because my father was authority figure. नहीं, ये नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है. टीवी तो नहीं होते थे. टीवी अगर later on stages में आए, they said कोई नहीं देखेगा, means कोई नहीं देखेगा. So they were quite. They knew how to exert power, and we all we were submissive enough to accept their power. Then another type of parenting style that we talk about is attachment. इतना ज़्यादा हम attach हो जाते हैं बच्चे के साथ में, जैसे umbilical cord ही नहीं कटी हो हमारी. We are always in and around the child. You कब खा रहा है, कब पी रहा है, कब
किसके साथ है, कब सो रहा है, एवरी टाइम वी आर इन एंड अराउंड, वो कहते हैं ममाज बेबी, तो हम उसको उस तरीके से पाल रहे हैं, बिल्कुल इतना ज्यादा हमें उसके साथ में अटैचमेंट हो जाता है। तो वो दिस टाइप ऑफ किड्स विल नेवर बी इंडिपेंडेंट, आगे फ्यूचर में एडजस्टमेंट में भी इश्यूज आएंगे, क्योंकि आजकल इफ वी टॉक अबाउट लाइफ स्किल्स तो सब कोर कॉम्पिटेंसीज में आता है कि लाइक हमें इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ना है, वी शुड नो हाउ टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली, हाउ वी कैन टेक द डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। ये सब चीजें बहुत कैजुअल, मतलब आजकल की उसमें इन थिंग है। इवन स्कूल्स आर ट्राइंग अ लॉट टू foster all these values, or rather I must say new learning core life skills. Then we have the permissive parenting style. Oh, कई पेरेंट्स हैं, हाँ बेटा अच्छा चलो ठीक है, अच्छा हाँ हाँ जो कह रहे हो वैसे कर लो, नहीं मन है पढ़ने का मत पढ़ो, अच्छा अभी सोना चाहते हो सो जाओ, नहीं जाना स्कूल इट्स ओके। Too much of permissive parenting, that is again totally outdated. पहले शायद चल जाती होगी because of a lot of reasons। एक तो जॉइंट फैमिली में चल भी जाता था काफी हद तक, इसके अलावा इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी, इतनी ज्यादा लाइफ के चैलेंजेस नहीं होते थे, तो उसमें कई बार हो जाता था। और क्या है कि पेरेंट्स सपोर्ट करने के लिए काफी टाइम तक वो अपना सपोर्ट एक्सटेंड करते रहते थे। बट टुडेज किड्स आर आल्सो वेरी डिमांडिंग एंड लाइफ स्टाइल हैज चेंजेस टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट। परमिसिव पेरेंटिंग में आप एक तरीके से बच्चे को एक ककून में डाल देते हैं जहां वो अपने शेल से बाहर ही नहीं आ पाता है, so that will never work. Free range style is again almost the same type, जहां आपने कहा हो जो करना है करो, you want a bike I'll purchase you a bike, you want a scooty okay fine deal done, no issues about it, जो करना है करो, we are allowing you, we are such a great parent, we are allowing you to do anything that you wish to. Then the last one is the uninvolved type. Parents, they don't take care, they are not involved at all in what the child is doing. उसको जो कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, वो पढ़ाई करना चाहते, ट्यूशन क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम है, we are least bothered because we are lost in our own worlds. हमारे पास अपने काम इतने ज्यादा है, अपनी इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट इतनी ज्यादा है कि we are least bothered about कि हम इन्वॉल्व होना चाहते भी नहीं है, because you know taking the responsibility of a child, it is not easy, it's a real challenge. जो पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, एक बच्चे को अगर आप बड़ा कर रहे हैं उसके साथ कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। मतलब इट्स राइट फ्रॉम आपके छोटेपन से लेके बड़े तक, जब तक उसके साथ आप लगे रहे हैं, यू विल फील इन्वॉल्व और आपको लगेगा कि आपने एक मतलब उसके साथ आप पल जी रहे हैं। इट इज नॉट it's not interfering, it is involving. तो वो एक हमें baseline बना करके उस हिसाब से काम करना है। I would like to read what is written over here is, to be a parent is a chief designer of a product more advanced than any technology and more interesting than the greatest work of art. हम कुछ भी create करते हैं, पेपर पे करें या वैसे otherwise करें, ठीक है, wherever we create something it's good, but when we mold a child and make him a happy child, make him a child who's doing good for the society, who's doing good for the family, I think then our task of parenting, of good parent is done over there. Now, one of the challenges that comes very well in front of the parents is आजकल हम ना सुनना नहीं चाहते, because हमारे अपने इतने ज्यादा काम है, इतनी ज्यादा चीजें हैं, WhatsApp पे हम, I mean it's really amazing rather I must say, whenever we have time we just want to get back to our WhatsApp or Facebook. तो वहां पर क्या होता है कि जब हमारे पास जब हमारे अपने ऐसे एंगेजमेंट्स होंगे तो फिर क्या है कि बच्चे के लिए हम टाइम, क्वालिटी टाइम नहीं निकाल पाएंगे। बट लिसनिंग टू द चाइल्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेक इट अ प्रायोरिटी टू नो कि आपका बच्चा क्या चाह रहा है, मतलब उसकी आशाएं क्या हैं। आशाओं से यहाँ पर आ जाता है कि उसके एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है। हम अपनी मर्जी से सब कर रहे हैं, वी आर डूइंग एज अ मदर्स, वी आर डूइंग अ ग्रेट ड्यूटी, एज अ फादर वी आर डूइंग अ ग्रेट ड्यूटी, बट व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द चाइल्ड? Maybe he doesn't want that kind of a thing. उसको flamboyancy नहीं चाहिए. Or maybe he wants to be around, in and around with you most of the time and to share his apprehensions and fear. किस बारे में उसको चिंता हो रही है? क्या वो उसके मार्क्स अगर 7 आए हैं 10 में से और आपके हिसाब से it's okay, but he feels कि he can do better and he's getting anxious that how he's going to face the classmates or the teachers. तो वो उसके apprehensions तक क्या पहुंच पा रहे हैं? Are you able to provide him with the emotional support that he requires at that time? That is a very big question mark. और यहाँ पर हमारी understanding एक तरीके से आ जाती है, it's not the duty that we are performing as a parent कि हमने उनको बता दिया, उनको खाना टाइम पे दे दिया, उनकी सारी requirement और need पूरी कर दी, but हम उनके emotional level तक पहुंच ही नहीं पाए। We have to be really careful about that.
when you spend your time with the child, you have to, अब इसमें क्या होता है कई बार पेरेंट कहते नहीं मैं तो पूरी बात सुनती हूँ या सुनता हूँ जब बच्चा मुझसे कुछ शेयर करता है. अच्छा, हम कैसे सुन रहे होते हैं? कभी कभी होता है किचन में हम काम कर रहे हैं, हाँ बेटा चलो बोलो, अरे मैं सब्जी बना रही हूँ, मैं सुन रही हूँ ना. या फिर आई एम डूइंग सम अदर वर्क, बेटा मैं सुन रही हूँ, आप बताओ क्या. And the child is smart enough, anyone can do that actually, is smart enough to gauge and identify that you are actually not listening attentively. आप सुन रहे हो बट 100% अटेंशन नहीं है. और ये अटेंशन स्पैन में ना बच्चा जब सेंस करता है मेरी मम्मी मेरी बात सुन रही है, मेरे पापा मेरी बात सुन रहे हैं, वो अपने मन की कहीं ना कहीं पे चीज आपके साथ ऐसी कह जाता है, यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी एब्सोल्युटली सरप्राइज्ड टू लिसन कि अच्छा ये इसके लाइफ में चल रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था. क्लास में अच्छा इतना ज्यादा पीयर प्रेशर है, मतलब इतने if he is doing anything which is right but against the norms of the group, तो उसको बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया गया है. and he is feeling very sad about it. आपको मालूम ही नहीं चलेगा क्योंकि आप उसकी उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे. तो remember your priority is going to be your child. You have to give good time, that is quality time, to listen to him and to attend to his body language ताकि वो आपके साथ बता सके कि हाँ जी क्या चीज अब वो आपके साथ क्या कहने जा रहा है. और ये active listening is very important over here. Ask questions अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे, जैसे आपने पूछा आज क्लास में क्या कुछ हुआ था, and then go deep into it, catch hold of it. You will identify, you will be able, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए वहां पर, या कुछ इंस्टेंस बता दीजिए, बच्चा थोड़ा खुलेगा. he will be able to share the things with you कि हाँ यहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम आई थी और ऐसे इस तरीके से मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. या फिर ये चैप्टर कल मैम कह रही है 3 चैप्टर्स का टेस्ट है, मेरा तो एक भी चैप्टर तैयार नहीं है, what do I do? Now there is a parent, your role comes in to support the child, at the same time inform and guide him so that he takes his academics seriously. और जब भी आप ये शो करेंगे, स्पेशली ड्यूरिंग द टफ टाइम पीरियड, जब वो इमोशनली थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड है, तो you will be able to connect with him in a better way and he will remember always throughout his life कि यहाँ जब मुझे परेशानी थी तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा सपोर्ट. I would like to share a real life example over here. This child was very good in SST, 10th class की बात है, बहुत अच्छा, मतलब 92% out of 100 in ICSE was supposed to be very good. तो मैम कहती है कि मैं 91.5 आए थे एक्चुअली out of 100. तो मैम का कहना था कि मैं 100 तो देती नहीं, 92 is the highest that I gave because it is all subjective. Okay, fine. This child was she became very popular in the class also. Half yearlies also she scored very well, 51.5 I think out of 60 or something like that. And now when she reached 10th standard, her scores went on very well, very well. Now when she reached 10th standard, होता क्या है, syllabus इतना इकट्ठा हो जाता है और स्टूडेंट्स सोचते हैं हम कर लेंगे. आज भी मैं देखती हूँ उनको लगता है हम कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं होता है. Now, when you're in ICSE board, when you're having your 9th and 10th syllabus all coming at one go in 10th standard, तो आपको जब सब कुछ करना है और मॉडल एग्जाम के लिए अपीयर करना है, तो वहां पर आपके जितनी भी आपकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है, if you're not revising the content frequently, you will be at a total loss. So this child, she devoted 4 days कि okay ये 4 दिन में SST is my very powerful subject. So I will devote only 4 days and that's good enough. मेरा सारा रिविजन हो जाएगा. और जब उसने रिविजन करना शुरू किया, to her dismay she realized कि इसको तो घबराहट होनी शुरू हो गई है, because syllabus revision का भी बहुत ज्यादा था. It required a longer time duration for the revision. And you know, pass होना was not difficult for her. उसके लिए नंबर लाना 50-60% भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, बट एक जो बार उसने रेज कर दिया था ना अपने लिए, एक स्टैंडर्ड जो रेज कर दिया था, एक्सपेक्टेशंस अपनी और टीचर्स की जो कर दी थी कि नहीं मेरे को ये काम करना है, मैं इतने तक लेवल तक पहुंच के दिखाऊंगी, वहां पे उसको लगा कि कहीं ना कहीं पे मिसमैचिंग हो रही है. आई विल नॉट बी एबल टू कम एट पार. So there was the family members observed the body language and they identified. उन्होंने फिर बात करी क्या हो गया कैसे, and she cried and she shared the concerns. It doesn't matter. This is pre-board. अच्छा है, pre-board में समझ में आया, हमें पता चल रहा है कहाँ गलती है, बोर्ड एग्जाम पे गलती नहीं करेंगे. These 2 lines by the father made such a strong impact. She scored 65% in that paper. But then these words made such a strong impact in her life. उसको याद रहा कि जब मुझे जरूरत थी, मेरे फादर मेरे साथ में थे, मेरी फैमिली मेरे साथ. So this is how you can extend your love and affection and show to your child that yes, you definitely care about him.
तो एक्सप्रेस योर लव फॉर द चाइल्ड. जब भी उसको कभी मुसीबत का समय आए तब जरूर उसको टाइम दीजिए. जब कभी वो ब्रोकन आउट फील कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है और फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, आप इस समय पे डेफिनेटली उसके साथ रहिए. और उसको कहीं पे लगेगा कि बहुत मेरे को इनकन्वीनियंस हो रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे को ये दिक्कत आ रही है, I mean, just consider him as a human being and you don't think कि अरे मैं कहती थी तुमने फिर भी नहीं पढ़ाई करी. No lectures. That is not required. Child already knows about it. Only thing is at that moment he requires your attention, your support, and do extend. Then be a role model. ये हम लोग सब कहते हैं कि role model होना चाहिए हमें role model. And we all know modeling is one of the very good ways. That is what we say in psychology. Yeah, it's one of the very good ways to make the child or any person learn what we want to teach him actually. So be the role model to the child. And when we are the role model, what happens is कि actually क्या होता है कि जब हम घर में होते हैं ना, तो बच्चा या तो हमें देख रहा होता है, घर में जितने फैमिली मेंबर्स हैं, या फिर बाहर अपनी सोसाइटी में जाएगा तो वो फिर स्कूल में देखेगा, वहां पे टीचर्स बहुत रोल मॉडल की तरह एक्ट करते हैं. और अदरवाइज कोई भी एक एडल्ट फिगर हो, इवन एनीवन जो थोड़ा सा सीनियर है, वो उनके लिए एक रोल मॉडल हो सकता है. और आजकल तो रोल मॉडल हमारे सोशल मीडिया के इतने सारे स्टार्स हैं जो रोल मॉडल की तरफ करते हैं. So if we can act as a role model, imagine what kind of a good this thing we are presenting in front of a child. जिस तरह का हम उसे बनाना चाहते हैं, उस तरह की चीजें उसके अंदर हम डाल सकते हैं. And that really helps a lot. You know, अगर हम कुछ भी ऐसा करते हैं, like what my suggestion here will be, don't do anything in front of the child that you don't want them to do. आप ऐसा कुछ भी करेंगे, वो उसको कैच करेगा और फिर क्या होगा कि he or she will do something which is again socially undesirable, which is not like that. तो एक यहाँ पे भी एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ. This is with respect to the drinking. फैमिली में कुछ गैदरिंग में ड्रिंकिंग वगैरह हो रही थी. छोटा बच्चा था 8th क्लास का, कहता मैं भी पीऊंगा, आप भी तो पीते हो. So it was very difficult for the parent to convince, but then as a suggestion it came that start discussing all these things with your kids. You know, आजकल का बच्चा वही है, क्या कहते हैं ना कि अंडरस्टैंड करता है, समझता है. You have to explain the things to him. If there is an age for this, we have to abide by the law, and then it becomes a choice of ours. And then we have to see the scenario. You have to really let the conversation flow so that they can relate, they can identify, they can answer, and they can participate also. अब यहाँ पर हम और नई थोड़ी मैं चीजें और बताना चाहती हूँ. थोड़ा सा डिविएटेड है, रोल मॉडल के इसमें नहीं आता है, बट बिकॉज आई टच्ड अपॉन द टॉपिक ऑफ ड्रिंकिंग. देखिए आजकल वही हम कह रहे हैं, चैलेंजेस बहुत आ गए हैं नए नए तरीके के. अब हमें मालूम नहीं है क्या चीज कहाँ कैसे, बिकॉज हमें मालूम वी आर थिंकिंग इन दोज लाइंस जो हम अपने टाइम में, हमारे टाइम में होता था. डू यू रिमेम्बर दैट हमारे टाइम में क्या स्पेस क्या सेफ नहीं होती थी. family members हैं, तो I think for every person it was a very safe comfort place at home, but nowadays it is not. कितने मीडियाज में एग्जांपल्स आते हैं. स्कूल में अगर कभी आप बैन केस में बात करेंगे तो वहां पे भी you have to be really cautious because it is actually not become very safe. You have to be cautious about the things and all. तो ये चेंजिंग जो टाइम है हमारे, इसके हिसाब से हमें बच्चों को गाइड करना है. Good touch, bad touch. Again, we have to guide. However, if we are not comfortable with that, we can take the help of a professional for that. But then we have to put ourselves into these harsh waters because this is the tough time and we have to guide our children accordingly. Now we are talking about the relationship issues and all. हमारे टाइम में इतने नहीं और इतना evident नहीं थे, to be very frank. But nowadays it's very common. It's cool to have friends. मतलब सब कहते हैं कि नहीं फ्रेंड नहीं है तो अजीब लगता है सबको. And we as parents, we have to accept these challenges क्योंकि ये सब चीजें हो रही है. आपका बच्चा भी इसमें आएगा. Only thing is we can guide them. We can tell them कि बेटा यहाँ पर अगर है तो these are the repercussions. This is the thing, and this is the limit that till which you can get involved with a person, maybe a group of people, or with the friends. Then you have to set their limits for them, and ultimately it's them for them to decide. And you know, this is one of the very good ways of inculcating decision-making skills also in front of them. So be aware, pose yourself as role models. आप देखिए क्या चीज हम किस तरीके से उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं. अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पर आई सीन फैमिलीज जहाँ पर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है. पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज करते हैं. वो बच्चे बहुत जल्दी और बहुत फटाफट अपने टाइम को उनको सिखाना नहीं पड़ता है.
They know मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, ऐसे करना है, अब this is my study time, this is my this time, and the list goes on. तो exemplify, show by examples. Resources को भी हमें exemplify करना होगा. अगर मैं आज बहुत ज्यादा खर्चा कर रही हूँ as a parent, और बच्चे को कह रही हूँ नहीं बेटा आपको मैं नहीं दिला सकती, it's very expensive. The child of today has the guts to say and question the parent today and say आप अपने ऊपर तो बहुत आपने क्यों किया. एक पेरेंट ने तो एक बच्चे ने तो ये भी कह दिया आप वो हॉलीडे इंटरनेशनल हॉलीडे पे क्यों गए थे, आपने मुझे इस चीज के मना कर रहे हो, अगर पैसे नहीं तो आपने ऐसे क्यों किया. I mean we have to really think, उनके पॉइंट पे से सोचना होगा. एंड यू नो आप उनको ये नहीं कह सकते तुम चुप रहो या भाई इतना क्यों बोल रहे हो, हम फादर हैं हम मदर हैं. You cannot say because they will question you and be prepared for all these things. वो कहते हैं ना थोड़ी हवा बदल गई है, पर ये हवा बदली बहुत अच्छा कुछ भी है इसमें, ऐसी बात नहीं है. कम्युनिकेशन के टर्म्स में एग्जाम्पलीफाई करिए. यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ. एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व थी फैमिली मदर and she was talking to the maid and in a very rude language. अच्छा आई नहीं, क्या हो गया, अरे मेरे घर में प्रॉब्लम थी आने में, this and that, and she was extremely rude. मैं तो पैसे काट लूंगी and the things were. And at the same time, after half an hour, she was taking a chapter on values with the child. हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए. चाइल्ड आस्क मम्मी आपने अभी कितने गलत तरीके से बात करी थी, एंड क्वेश्चन वेरी वेल. और द पेरेंट वाज टेकन अबैक, क्योंकि देखिए एक रैशनैलिटी का मोड हम सब में होता है. एंड द पेरेंट वाज हम्बल इनफ टू से हाँ बेटा वो तो मैंने गलत कर दिया. यहाँ पे एक बात और मैं बोलना चाहूंगी कि अगर कोई हम गलती करते हैं तो उसमें सॉरी बोलने में कोई हर्जा नहीं है. Even as parent, if I'm saying sorry to my kid, it's absolutely fine. You know, we are teaching a very important value to a child. Humility, it always pays. And if you've committed a mistake, say sorry. Because अगर गलती की है तो काफी कुछ उससे settle down हो सकता है, उससे हम छूटे नहीं हो जाते. Then you go by the energy levels. The energy of the family members, especially the parents, is the energy of the family. अगर आप बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, ये भी मैं आपको इसका भी एग्जांपल बताती हूँ. एक फैमिली में कोई गेस्ट आने थे तो किचन में जाकर जो मम्मी धीरे धीरे हाथ, शी वाज कुकिंग समथिंग, तो हाथ में पैटीज को लेके धीरे धीरे स्लोली शी वाज मूविंग द थिंग्स एंड ऑल. एंड जो फैमिली आई तो बड़ा अमेज कहते इतनी देर में तो हमने कितना काम कर लिया होता. तो क्या है कि अपने हाइटेंड एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, तो मूव चीजें बड़ी जल्दी फास्ट करती हैं. आपको लगेगा कि 1 घंटे में हमने कितना काम कर लिया है. और ये एनर्जी लेवल्स हमारे द मोमेंट वी बिगिन अर्ली आवर डे अर्ली, हमारे एनर्जीज बहुत ज्यादा सेफ रहती है. मतलब ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है. यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कितने ही लेट आप सो रहे हो, इवन इफ यू आर स्लीपिंग बाय 2-2:30, इट्स ओके. यू सेट अ शेड्यूल फॉर योरसेल्फ कि ये रेंज है मेरी, इतने में मुझे उठ जाना है. 3:30 to 5:30 is the range, so जिसमें maximum will be 5:30, because that is the time when your energy levels are high. There's least distractions, where you can do the best. आप प्लानिंग अपने दिन की कर सकते हैं, अपने बच्चे की दिन की कर सकते हैं, and you get maximum. बहुत आपको शांति मिलती है क्योंकि आपने एक दिन बहुत अच्छा अपना शुरू किया है. और आपने अच्छा शुरू किया है, बच्चा ऑटोमेटिकली थोड़े टाइम बाद पिक करना शुरू कर देगा. Then exemplify by showing your emotions. If husband and wife are having altercations at home, कहीं ना कहीं ऐसे इतना strong conversation होता जा रहा है due to any reasons, child will take advantage of the things. दो तरीके से उसका नेगेटिविटी आएगी. एक तो उसको लगेगा सारे दिन यहाँ घर में झगड़े ही करते रहते हैं. एक फैमिली में तो ये भी हो गया कि बच्चे ने कह दिया I'll not get married because you all are always fighting. Then however hard you try to explain to them, वो आगे चल के उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते. Another thing is वो बहुत ज्यादा या तो तब्बू बन जाएंगे और लगेगा कि मतलब आपको लगेगा कि अरे मेरा बच्चा, मैं तो इतनी ओपनली बातें कह देती हूँ. I'm so I mean I speak so blatantly about the things and all. मेरा बच्चा इतना तब्बू क्यों है? This is the impact of the family environment. So exemplify. जो चीज आप चाहते हैं बच्चे के अंदर आए, उस चीज को आप एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रेजेंट करिए. So parents are the ultimate role model, and every movement and your words has a strong impact on the child. तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए. Now mental well-being of children. एक अच्छा एटमॉस्फेयर घर में बनाना है, क्योंकि आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके मार्क्स अगर 100 on 100 आए हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया बहुत टॉप नॉच कॉलेज में, या सीए कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर अगर वो अपनी मेंटल हेल्थ के साथ, अगर उसकी साउंड मेंटल हेल्थ नहीं है, लोव साइडेड डेवलपमेंट है वहां पर, तो इट्स ऑल फ्यूटाइल. मार्क्स चाहे थोड़े कम आ जाए, इट्स ओके.
और एटलीस्ट एक वेल एडजस्टेड बंदा तो होगा, बच्चा तो होगा, एक ऐसा बच्चा तो होगा जो सोसाइटी के लिए अच्छा करेगा, अपने आप को हार्म नहीं पहुंचाएगा, फैमिली में एक अच्छा केओस क्रिएट करने के बजाय एक सौहार्द का वातावरण क्रिएट करेगा। डिस्कस न्यूज विद द चिल्ड्रन। अब जैसे आजकल लॉकडाउन का टाइम पीरियड है, I very clearly tell the parents, न्यूज जो सारे 24 घंटे जो चल रहे होते हैं ना, टीवी चल ही रहा है, पार्ट एंड पार्सल बन गया है हमारी लाइफ का। तो देख ले क्या आ रहा है न्यूज में, सेम चीज आ रही है, कुछ नया आएगा तो रात भर दिन भर वही दिखाते रहेंगे। Why not fix up a time for the news? और न्यूज में जो अगर नेगेटिविटी आ रही है, जो कि at times 80% होती है, discuss those news with the children. You will be amazed to listen to their views. They will say कि अरे ये तो यहाँ पे गलत था। You will be again आपको लगेगा कि इसकी इतनी दूर तक की सोच है इस बच्चे की। Take out time and discuss the news with them, because all that is happening is always not bad. कई बार perspective change करने से हमें बहुत answers मिल जाते हैं। Talk to them और उनका इमोशनल क्वेश्चन बनिए, as I shared earlier as well. Now, you know, एक कई बार हम कहते हैं कि ओ हम तो बहुत अच्छे पेरेंट बनना चाहते हैं पर हमसे भी गलतियां हो गई and we feel very sad about it. ऐसा बहुत बार होता है, अक्सर होता है, बल्कि मेरे को कहना चाहिए। हमें लगता है हुई है तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं गुड पेरेंट और नॉट। मतलब मैं आपको बताऊं, आई हैव अ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स अभी रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया एज अ पार्ट ऑफ द काउंसलिंग। उनमें से मैक्सिमम ये है कि वी आर नॉट डूइंग एनी गुड टू आवर चिल्ड्रन। उनके मन में ये फीलिंग आती है, गिल्टी फीलिंग आती है कि हम अपने बच्चे के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। And you know, as the session progressed and we discussed, they realized कि अरे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं था, वो उनकी अपनी खुद की फीलिंग थी, जबकि ऐसा नहीं है। There's nothing like a perfectionist as far as parenting is concerned. You know, we all are learning. और कई बार क्या होता है, एक चीज एप्लीकेबल है, दूसरी चीज एप्लीकेबल इतनी इसमें नहीं हो पाती। तो it's okay to make mistakes, but not learning from your mistakes is the thing that is not acceptable. आप जहां अगर गलती कर रहे हैं, उस गलती से रिफ्लेक्ट अपॉन करके चेंज लाइए। जैसे आपने कुछ स्ट्रांगली बोल दिया बच्चे को, एक लगा दिया कि नहीं आपको नहीं जाना है बेटा उस पार्टी में, बच्चे ने आपकी बात भी मान ली। लेटर ऑन रिफ्लेक्शन यू रियलाइज अरे नहीं सब तो जा रहे थे, मेरी अपनी एंजाइटी बीच में आ गई, मेरे को जाने देना चाहिए था। भाई हमारे टाइम में इतना नहीं ओपन जाते थे, बट अब आजकल के बच्चे जाते हैं और उसके अच्छे अच्छे फ्रेंड्स जाते हैं, उनको मैं जानती हूँ, उसके साथ में उनके पेरेंट्स को भी मैं जानती हूँ। व्हाई डिडंट आई अलाउ? अगर आपको ऐसा कहीं भी हुआ आ रहा है ना, please talk to your child and say, "Beta, I committed a mistake. मैंने बहुत बड़ा ये कर दिया. Next time I will definitely allow." I mean, speak it out, because we all are learning. Now, coming to the things and all, yeah, this is a very important point that's covered over here. No unfavorable comparisons जो हम कई बार कर देते हैं as parents कि भाई देखो वो भी तो कर रहा है, उसके नंबर इतने हैं, तुम्हारे क्यों कम रह गए? या देखो within the siblings also we compare कि भाई ये दो बच्चे हैं, ये जैसे ये तुम्हारी बहन कितना अच्छा कर रही है, तुम क्यों नहीं इतनी अच्छा करते हो? The moment you use these words, you've done harm to the child. So here we have the wise words from Mrs. Neelkam Ograji. She is the retired teacher, and what she says is that the parents, she is giving an advice, the time tested therapy जो इन्होंने बहुत over the years as part of the experience gain करी है, you should not compare children in any respect for that matter. किसी भी चीज में comparison नहीं करें, क्योंकि क्या है कि हमारी कहते हैं ना पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। And when the child is taken into confidence, और जब हम comparison बंद कर देते हैं, रिजल्ट्स हमेशा अच्छे आते हैं। ये इन्होंने अपने स्कूल का कोई एग्जाम्पल कोट करते हुए बताया था कि जहाँ पर कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया और उन्होंने किस तरीके से रिजल्ट को अच्छा किया by asking parent not to compare. This is one of the wonderful ways, because इस चीज को मैं पर्सनली भी फील करती हूँ। Even till today, if I am compared to someone, अब तो खैर फिर भी मेच्योरिटी आ गई है, तो एक मन में एक पता है इसका नेगेटिविटी क्या आ जाती है। एक तो ये नेगेटिव आता है कि वो मेरे से अच्छा है, ये मेरे पेरेंट इसको कर रहे हैं, तो एक जेलसी की भावना आती है। सेकेंडली क्या आता है कि एक आप बिल्कुल अड़ जाते हैं कि नहीं अब मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, वही अच्छा है तो ठीक है वही अच्छा है। और दोनों सिचुएशन हम मोटिवेट करना चाह रहे हैं अपने बच्चे को, तो हमने तो वहां पर एक बिल्कुल एक बैरियर की तरह हम आ गए, राइट? सो वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल नॉट टू हैव कंपैरिजन। नॉट इमेजिन करिए अगर दो बच्चा आपका कंपेयर कर दे कि उनकी मम्मी तो कितनी अच्छी है, उनकी मम्मी तो ये कर देती है, हाउ विल यू फील? तो we should not do the comparison part. So coming next to the thing, we have here this thing quote by Neelam Vadera ji, the Vice President Delhi Laughter Club. What she says that words of wisdom again from her, कि अगर जैसे she has granddaughter and she has granddaughters, what she says is कि हमें अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस देनी चाहिए ताकि वो बच्चों को रेस कर सके।
मतलब अगर मेरा बेटा है और मेरी बहू है तो मेरे को उनको ये कहना हर समय कि नहीं तुमने ये ठीक नहीं कर रहे, इसको ऐसा करो, ये करो, हम ऐसा करते थे, नो, कहते उनको बता दो। बाकी दे हैव देयर ओन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, दे हैव देयर ओन सिचुएशंस, और आजकल के डिमांड्स ऑफ द टाइम भी डिफरेंट है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, बट ये बच्चे अपने इंडिपेंडेंटली अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं हर चीज को लेकर के। तो क्या है कि इनके हर तरह से अगर देखा जाए तो टोटली डिफरेंट तरीके की सिचुएशन उनके सामने है। तो हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं हमारे सजेशंस को। ओनली थिंग इज वी कैन शेयर विद देम, बाकी इट्स एब्सोल्युटली देयर चॉइस वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट। Now explaining the importance, अब जैसे रमा जी है, she's a yoga teacher from भारतीय योग संस्थान, and she says that कि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों में योगा क्या मतलब she feels the importance of it and कहती है मेरे बच्चों में भी आए। तो कई बार तो दिखाया भी उनको, उन्होंने देखा भी कि मेरी मम्मी ऐसे करती है, इस तरीके से है, पर धीरे धीरे जब मैंने बातचीत भी करी कि कैसे बेटा आप जैसे यंगस्टर्स से आप बात करो, आपकी अच्छी फिजिक बनेगी और कैसे आप ज्यादा अच्छा पढ़ाई में कर पाओगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे और आपका चेहरा भी दमकेगा, मतलब आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो कहती कि धीरे धीरे मुझे वो बच्चे मेरी बात समझने लगे, क्योंकि उन्होंने नोटिस भी किया है सारी चीजें जो उनके साथ में और लोग जुड़े हुए हैं, उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस उन्होंने ऑब्जर्व किए। तो बच्चों ने खुद भी करना शुरू किया एंड दे फाइंडिंग इट कि यस इट्स अ गुड वे टू एक्सरसाइज एंड कीप आवर माइंड एंड बॉडी इन सिंक विद ईच अदर। Now coming to the next one is anger management. Yeah, Anu Sahani, she's a homemaker and photographer and videographer out of passion. इन्होंने बताया एक सिचुएशन शेयर करी अपनी डॉटर के बारे में। वो कई बार गुस्से में गलत बोल जाती थी और मैं भी कुछ जवाब दे देती थी। गुस्सा तो आता ही है, कहते हैं ना गुस्से में रिटेलिएशन होता है। तो पर जब शी रियलाइज कि भाई ये तो तरकीब काम नहीं कर रही है और माय चाइल्ड इज वेरी सेंसिटिव, तो उन्होंने बैठ के उससे डिस्कस किया अच्छे मूड में, कहा देखो भैया जब बेटा आपको गुस्सा आएगा मैं समझा दूंगी, तुम्हें गुस्सा आया तो तुम मुझे याद दिला देना। तो दोनों एक दूसरे के ना वो बन गए कि चेकर बन गए जिसे कहते हैं, और दोनों का ध्यान रख कब मम्मी को गुस्सा, इंस्टेड ऑफ हमने फोकस ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल चेंज कर दिया। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि गुस्सा हम दिखाएं, हमारा ध्यान ही था कब मम्मी को गुस्सा आता है। तो the things took a very good shape and this is a wonderful strategy. Frankly speaking, मैंने ये कहीं नहीं पढ़ी थी। ये कहते हैं ना practical जो चीजें हम सीखते हैं, and I really loved it, this particular strategy, how she worked and how sensibly she tried to deal with the situation. Now coming to the thing, have faith in yourself. This is again Rashmi Prabhakar, the admin of Facebook group, and again a versatile lady. I've shared in my earlier session also about it. इनका कहना है इनके बच्चे बड़े वेल सेटल्ड हैं और आज की डेट में इनके पास काफी टाइम है, तो कहती है कि मैं अपना ग्रुप चलाती हूँ, फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। पर मैंने हमेशा अपने अंदर विश्वास रखा कि और घर में भी उसी विश्वास के साथ काम किया कि कहीं कोई सिचुएशन है तो बदल जाएगी, कि एक मेरे को उत्साह बना के रखना है और साथ में मेरे को अपने अंदर पेशेंस रखना है। And you know, when it comes to parenting, it's patience, having more patience and having all the more patience that really counts. तो ये कहते हैं कि इस दिए कोई सोचना कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, अरे मैं तो बेकार हूँ या मेरा बच्चा बेकार है, नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। क्या है, अपने हमें विश्वास के दिए को जलाना है और रोशनी करनी है और कर्मठ बनना है बेसिकली। तो हर जगह हमें कोई ना कोई सोल्यूशन नजर आता रहेगा। Moving to the next one is yes, Mrs. Shashi Kumar, she's deputy librarian, retired from Indraprastha College of Women. This is my college, and इनका मैं आपको पर्सनली बताना चाहूंगी, she was my librarian as well, and तब मैं इनको नहीं जानती थी इतने उससे, तो हाँ, तो इनका कहना ये था, जब मैं इनको हमारा ग्रुप देखता था ना, हम सोचते कितनी स्ट्रिक्ट है मैम, मतलब आप लाइब्रेरी में, अगर हम तो खैर हॉस्टलर्स थे तो बाथरूम स्लीपर्स में जाते थे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कैसे जा रहे हैं क्या है, ऐसे चले जाते थे हॉस्टल से निकल करके। बट अगर कोई जैसे बहुत हील्स पहन के कोई आई है, ठक ठक करती आवाज भी, कॉलेज में सब they like to dress themselves up and carry themselves well, तो मैम की नजर जो यूं पड़ती थी ना ऐसे साइड में, वो वहीं पे रुक जाता था और धीरे धीरे चलता था। Pin drop silence means pin drop silence. It was such a harsh discipline. But then I must say why I'm quoting it here is she has been one of the, you can say, जिसका मेरे पे बड़ा गहरा impression पड़ा था उस समय पर, कि अगर आप डिसिप्लिन की तरफ ध्यान देंगे तो आपको क्वालिटी आपको मिलेगी। And you know, this has become a part and parcel of my life also. Discipline, आप accept करिए limitation, leverages दीजिए, but एक discipline के साथ आपको काम करना है, and that discipline should be there with you as well. So now moving to the next one is
respects ID. ID is not ये जो ID आधार कार्ड ये वगैरह वाला ID नहीं है. This is individual differences. She's Dr. Kalpana Rastagi. She's a retired teacher cum counselor and very much liked by students. इनका कहना है कि child, हर बच्चा एक unique entity है और जैसे कि मिसेस ओबरा जी का भी मैंने शेयर किया था कि हर एक का डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं, टेस्ट और आइडियोलॉजीज हो सकते हैं. जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, यूनिकनेस को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. मतलब हमें ये कहना चाहिए कि ये ओरिजिनल कॉपी है, इसको मुझे फोटोकॉपी नहीं बनानी है, क्योंकि फोटोकॉपी की कोई वैल्यू नहीं होती है. आप भी जानते हैं इस बात को. तो ओरिजिनल कॉपी को ही हमें रखना है. तो जिससे क्लोनिंग ना करें, ओरिजिनल बनाएं और ओरिजिनल में उसके जो अपने गुण हैं, उसके जो इंटरेस्ट एरियाज हैं, काबिलियत है, उसको निखारें. लिमिटेशंस भी होंगी, वीकनेसेस भी होंगे. इट्स ओके, वीकनेसेस को नीचे करने की हेल्प. Now next, it's teaching about religion. This is Mr. Manmohan Vadera ji, worked in Delhi government, retired as Assistant Director of Vigilance and Senior Member of Delhi Laughter Club. He has said that how he has tried. Please mute yourself, all of you, so that we can have a comfortable flow of the session. Teaching about religion, Mr. Manmohan Vadera ji ने कहा कि मेरे को बहुत बड़ा challenge था जब मैंने अपने बच्चे को बताया कि religion के बारे में. उसने कहा because he never believed in religion. He कहते superstition है. It is about just blind faith. How he taught is really wonderful. मतलब ये भी मेरे को नहीं मालूम था कि this is how you can actually throw the idea of having a positive connotation towards religion. तो उन्होंने कहा कि जब हम एक बहुत अच्छी खूबसूरत लाइफ लीड करने चलते हैं और कुछ अपने पर्सनल गेन्स को फोरगो करके जिससे सबका भला होता है, तो सबकी लाइफ बहुत मीनिंगफुल हो जाती है. और इसके लिए इन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल्स के थ्रू सेट किया और अपने आप इन चीजों को फॉलो किया. What a wonderful way of teaching about religion. Now, Monica Rana, she's a chess instructor and she's running her academy as well, and she's working with the academy as well. And she says that mobile addiction से भागने का, बचाने का अपने बच्चों को एक बहुत अच्छा तरीका है चेस, क्योंकि चेस से concentration levels बढ़ते हैं. इनका कहना है कि IQ भी बढ़ता है, फोरसाइटेडनेस बढ़ती है और साथ में प्लानिंग की आदत बढ़ती है, क्योंकि आप अगले एक मूव की तरफ ध्यान रखते हो. फोकस कितना बढ़ेगा. So this is a very strong implication for the parents who have special needs children, especially with respect to ADHD, attention deficit hyperactive disorder. तो वहां पर अगर आप ये शुरुआत में अगर इस चीज को डालने की कोशिश करते हैं चेस खेलने की, स्क्रीन से बच्चा हटेगा और साथ साथ उसका फोकस और अटेंशन बेटर होना शुरू करेगा. There are other games also, there are other ways also to improve concentration, and chess is one of them. Increase the happiness quotient. Adish Kumar ji, he is the retired Deputy Director from Defense Ministry and of India, and member, in fact, Secretary of Secretary of the Delhi Laughter Club. And इनका कहना है कि भाई इनको तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि happiness, happiness, happiness all around. So the thing is, अपने happiness quotient को आप improve करिए. HQ की हम आजकल बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ में हमें अगर पढ़ा रहे हैं ना, एक स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, चेहरे से खुशी का भाव परिलक्षित होना चाहिए. बच्चे का चेहरा दमकना चाहिए कि ओ मैंने आज काम किया, ये बड़े मजा अच्छा लगा. तभी ये एक अच्छे इंसान बनेंगे और एक दूसरे का ध्यान रख पाएंगे. और अगर खुद ही खुश नहीं रहेंगे तो दूसरे को क्या खुश रख पाएंगे. सो इनका फेवरेट सॉन्ग भी एक है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार. हाँ, तो द थिंग इज वी शुड try to develop such kind of a attitude and the value in our children. Teaching responsibility, Arshia Riaz, she is a senior nursing officer, and she says that about how she's been trying to guide the child so that he or she is able to take, he is rather able to take the responsibility. इनका कहना है कि उसको जैसे बड़ा हो रहा है बच्चा, तो मैंने क्या करना शुरू किया, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ. जैसे कि पौधे में पानी दो मेरे साथ साथ, या फिर कुकिंग के लिए थोड़ी हेल्प कर दो मेरी चॉपिंग में, किसी इसमें. शी ऑल्सो मेक देम डू कि थोड़े कपड़े यहाँ से इधर शिफ्ट कर दो. एंड द चाइल्ड, मेरे सामने की बात है इसलिए मैं जानती हूँ इस बच्चे को, तो ही इज वेरी ओबीडियंट एंड नॉट ओनली दैट, बहुत रिस्पॉन्सिबल है. छोटे भाई बहनों का भी ध्यान अच्छे से रखता है. सो दिस इज हाउ वी कैन टीच इन स्मॉल वेज ऑफ. जब हम कहते हैं ना बच्चा तो जिम्मेदारी इतनी लेता ही नहीं, इसका तो कमरा फैला रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं हमने पहले इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली है. A word to really thought to ponder upon.
Keeping a pet to play. Mrs. Vinita Nagpal, she's a teacher and MSc Mathematics, and she's done a diploma in hotel management as well. She's joint secretary of Delhi Laughter Club, laughter therapist and zoophilist, और ये एनिमल शेल्टर ओपन करना चाहती है. इनको लगता है कि मोबाइल एडिक्शन से सबसे अच्छा तरीका या स्ट्रेस से भी दूर हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और जब बच्चे बाहर खेलने नहीं जा पा रहे, कि एक पेट हो जिसके साथ वो खेल सके और रिलैक्स हो सके. Such a really a wonderful way to relax oneself and involve yourself in playing with a pet. Lack of social interaction. Meena Nangia ji, she's an ex-librarian, and she says that कि आजकल जैसे वही हम लॉकडाउन के अंदर जैसे हम खेल कूद ज्यादा नहीं पाते, बच्चे हमारे नहीं जा पाते, हमें डर भी लगता है, और उनको सारे टाइम तो मोबाइल या टीवी चाहिए. तो इसमें क्या है कि सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हैम्पर्ड हो जाता है. इट्स अ वेरी बिग चैलेंज. इसमें क्या किया जाए? आईज भी स्ट्रेन आ जाता है. The thing is, having a pet is one thing, but everyone is not very comfortable with having a pet. We can have loads of games. We can have craft activities within the home. We can have Zumba, aerobics online. We can get ourselves involved rather than asking a child to do कि बेटा तुम कर लो, साथ साथ आओ चलो करते हैं. एक छोटी सी चलो वीडियो बनाते हैं. इसमें वीडियो बनाते बनाते he or she will feel very happy. Or let's do some dance together and we'll post it in the media. Something like that which make the, क्योंकि आजकल के बच्चों को मीडिया के सामने आने का बहुत शौक है कि मेरी वीडियो बने और मेरे कहीं कहीं पे मुझे प्रेज मिले. We can encash on that. Now developing a reading habit, very important. Ashima Thareja, the business woman, she says that कि reading habit आजकल almost negligible हो गई है. छोटेपन से इन्होंने कोशिश की अपने बच्चे में डालने की, क्योंकि child wanted कि मेरी मम्मी मेरे को पढ़ दे, मैं सुन लेता हूँ. बट मेरे को हैबिट डालनी थी, तो मैंने छोटी छोटी साइज की किताबें लेकर के आई, कलरफुल थी और उसके फेवरेट कैरेक्टर की, और धीरे धीरे उसकी ऐसी हैबिट बन गई. नाउ ही हैज गॉट हिज ओन पर्सनल हैबिट, पर्सनल लाइब्रेरी, एंड ही इज इनटू द रीडिंग हैबिट अ लॉट. सो द थिंग इज, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगी कि देयर इज अ बुक, द प्लेसेस आई विल गो. दिस इज बाय डॉक्टर स्यूल्स. आप देखेंगे नेट पे बहुत आराम से मिल जाएगी. दो लाइन है, एक चित्र है, दो लाइन है. आज 12th का बच्चा भी इसको बहुत शौक से पढ़ता है. और क्यों? क्योंकि बड़ी मोटिवेशनल लाइंस हैं डॉक्टर स्यूल्स की. अगर आप देखेंगे तो आपको सारी सीरीज ही पढ़ने का मन करेगा. मैंने पर्सनली पढ़ी है, तो आई कैन रिकमेंड दैट. तो द थिंग इज, इसमें से देखिए कैसे आप रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं. Studies, Anmona Gupta, she's a yoga and Pilates teacher. She's taking the classes online, and she says that आजकल पढ़ाई के लिए बच्चों को कैसे हम इम्पोर्टेंस उसकी समझाएं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए. और मतलब ये नहीं कि केवल पास करना है, तुम्हें अपने लिए पढ़ना है. It is for your own growth. That is a very big challenge. For here, I would like to add upon that get involved in your child's studies, और उसको रिसोर्सेज ढूंढ के दीजिए जिससे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो. उसकी आइडियोसिंक्रेसीज को समझिए, बच्चे की क्या चीज वो वैल्यू करता है, क्या एंजॉय करता है, उससे कनेक्ट करिए. और एक टाइम, स्टडी टाइम बनाइए, एक रूटीन बनाइए. यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू द थिंग्स एंड ऑल अकॉर्डिंग टू दैट. हैव अ अपने पेरेंटल कंट्रोल यहाँ पे जरूर लगाइए कि स्क्रीन टाइम बेटा इतनी देर ही मिलेगा. स्कूल के लिए तो काम करना जरूरी है, बट बाकी टाइम यू गो एंड रीड योर बुक. टेक्स्ट बुक की तरह से आप काम करिए. राइट डाउन द आंसर्स. क्योंकि अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर अगर अथॉरिटी अपनी नहीं रखेंगे ना, तो वही कहते हैं परमिसिव पेरेंटिंग रहेगी, तो बच्चा जो मन में आएगा वो करेगा. Now a quick recap of what we have done just now. That is, listen to your kids. उनकी सुनिए, अपने रूल्स बनाइए और रूल्स के साथ फर्मली अडहेयर करिए. ये गुड रोल मॉडल. अपने इमोशंस और अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए ताकि एनवायरनमेंट ठीक रहे. बी फ्लेक्सिबल. हाँ, अगर फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब यहाँ पर है कि अगर हम स्ट्रिक्ट हैं, इट्स फाइन टू हैव रूल्स, बट कभी भी जरूरत पड़ती है तो हम थोड़ा फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, बिकॉज अडेप्टेबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइफ स्किल्स. शो लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ हग्स टू द चिल्ड्रन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसके लिए आपको ज्यादा मोमेंट सोचने की जरूरत नहीं है. I would like to share the lines by Gianna Lumans, which I really love. ज़्यादातर presentations में मैं parenting के मैं कोशिश करती हूँ, ये मेरी हो. That is, what she says is कि if I had my child to raise over again, I had finger paint more and point the finger less. I had do less correcting and more connecting. I had take my eyes off my watch. I would care to know less and know to care more. I had take more kites and fly more kites. I'd stop playing serious and seriously play. And I'll be more through more fields and gaze at more stars. I'd do more hugging and less of tugging. I would be firm less often and affirm more often.
I build self-esteem rather than building the house first. I teach less about the power, the love of power, and more about the power of love. Such beautiful lines. आप इसको बाद में भी जब वीडियो आएगा तो जरूर इसको repeatedly देखिए. Otherwise, grab a poster from the internet and place it at a vantage point. Now, there are few more points, but then I think most of them have been covered. I'll leave the floor open. Before I end, I would like to. I really don't know. Can I stop sharing the screen now? Yes, so that I can see my audience as well. Oh yes, yes. Yes. 1 minute. How do I? Okay. Haan ji, haan. Okay, I can see so many people whom I know and otherwise new faces also. So nice of you all to join in. It's really good. Okay. So let me begin with Neelam Vadhera ji. She's over here. And इनकी मैंने आपको स्लाइड भी दिखाई थी. तो इनके तो वर्ड्स ऑफ विजडम में हमेशा मतलब इनसे तो मैं जब बात भी करती हूँ ना मेरे को लगता है कि it should go on endlessly because there is so much to learn from her experiences. I would like to ask her a question pertaining to the slide itself only. कि आपने ये बच्चों के डिफरेंट स्टेजेस और ग्रोथ के बारे में देखा भी होगा इतने मतलब यू आर 70+ एज ऑन नाउ. तो बच्चों को की पेरेंटिंग के बारे में आपने जो कुछ जितना देखा है कुछ सजेशंस अगर आप देना चाहेंगे सब लोग जो थे यहाँ पे बैठे हुए हैं. प्लीज ओवर टू यू. यू नॉट ऑडिबल. आप अनम्यूट कर लीजिए. Thank you पूनम जी for giving me this opportunity. देखिए उम्र के इस पड़ाव तक आते आते हमारे पास अनुभवों का भंडार हो जाता है. लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि बच्चों की हर स्टेज के जो पेरेंटिंग के चैलेंजेस अलग अलग होते हैं. सबसे पहले हम आते हैं छोटे बच्चों के ऊपर. छोटे बच्चों की पेरेंटिंग के समय सबसे इम्पोर्टेंट है उन्हें अच्छे संस्कार देना, उनमें कॉन्फिडेंस जगाना. अगर बच्चों में अच्छे संस्कार बचपन से होते हैं तो बच्चे कभी भी आपके गलत राह पे नहीं जाते. मैं छोटा सा एग्जांपल अपने बड़े बच्चे का देती हूँ. मेरा बड़ा बेटा 20 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया चला गया था. तो मुझे लोगों ने डराना शुरू किया कि इस उम्र में जो बच्चे जाते हैं ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं. तो मैंने एक दिन फोन पे उससे डरते डरते कहा, मैंने कहा बेटा मेरी एक बात मानना, जो मर्जी करना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस जरूर करना, लेकिन कभी ड्रग्स की ओर नहीं बढ़ना. मेरे को ये काम मैं कभी नहीं चाहती. उस बच्चे ने मुझे उस समय आज से 25 साल पहले एक जवाब दिया था, वो मैं आज तक नहीं भूल पाती. उसने मुझे ये जवाब दिया, मम्मी आपको मेरे पे विश्वास हो ना हो अपने संस्कारों पे विश्वास कीजिए जो आपने मुझे दिए हैं. दैट वाज ग्रेट एंड इट चेंज्ड माय लाइफ. कि बच्चे ने मेरे संस्कार अपनाए हैं और वो मैं आज तक उस बात को कभी उसकी भूली नहीं. तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप इसे स्टोरी समझें या रियलिटी समझें. एक टीचर क्लास में उसने एक टॉपिक दिया बच्चों को लिखने के लिए कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं. तो जब कॉपियां घर लेके आई वो चेक कर रही थी, तो वो चेक करते करते एक कॉपी वो रोने लगी. उसके हस्बैंड पास बैठे थे, कहने लगे क्या हो गया. कहने लगी देखिए एक बच्चे ने लिखा है कि मैं बड़े होके मोबाइल बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपने मम्मी पापा के साथ टाइम बिता सकूं. तो फादर ने कहा कि यू मस्ट टॉक टू हिज और हर पेरेंट्स एंड टेल देम नॉट टू डू दिस. तो जोर से रोई और कहने लगी ये और कोई नहीं है, हमारा अपना बच्चा ही है जिसने ये लिखा है, मेरे अपने बेटे ने ये लिखा है. तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए. हम बच्चों के सामने मोबाइल और टीवी कम करके सेट एन एग्जाम्पल, जस्ट नॉट प्रीच, सेट एन एग्जाम्पल. अब आते हैं क्योंकि टाइम का थोड़ी समय सीमा है, तो अगर जवान बच्चों के ऊपर पेरेंटिंग की बात करें तो जवान बच्चों को हम ज्यादा टोका टाकी ना करके उन पर नजर रखें. बी केयरफुल, उनके एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट करें, उनके फ्रेंड सर्कल को जाने. और अगर वो कहीं गलत राह पर जाते हैं तो उस समय डांटना और सजा देना गलत सिद्ध हो सकता है. आपने देखा है सुसाइडल डिप्रेशन टेंडेंसीज जवान बच्चों में बढ़ती हैं. उसका कारण यही है, हम बच्चों को, बड़े बच्चों को पेरेंटिंग के समय बड़ा प्यार और इज्जत से उनसे बात करनी चाहिए. अब आते हैं हमारी स्टेज के जो बच्चे हैं, हमारे बच्चों के भी बच्चे हैं. जैसा कि मैंने अपनी इसमें कहा, हम कई बार क्या होता है बच्चे अलग रहते हैं, अपनी उनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अलग उनकी जॉब कंपल्शन है. लेकिन कई बार बात करते हुए मैंने एक बार देखा उसने अपनी बिटिया को डांटा किसी बात पे. तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की. मैंने कहा बच्चे ऐसे नहीं करते, इस तरीके से आप उसको समझाओ.
तो उसने मुझे कहा मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारी कुछ अपनी कंपल्शन, हमारा जो कल्चर जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमें उस तरीके से बच्चों को हैंडल करना है। हम आपकी बात 100% नहीं मान सकते, जो आप कहते हैं ठीक है आप गलत नहीं हो, लेकिन हमें अपने तरीके से भी बच्चों को हैंडल करना है। नाउ वी आर बिग इनफ। तो मेरा ये मानना है कि जब आप बच्चे बड़े हों तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं, बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो आपकी 100% बात मानेंगे। इस तरीके से अलग उम्र के पड़ाव में, अलग बच्चों की एज में पेरेंटिंग के अलग अलग चैलेंजेस हैं। इफ वी एक्सेप्ट देम तो हमें निराशा नहीं होगी, हम परेशान नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच पूनम जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल माय पॉइंट। So nice of you. Oh, so nice of you to share such wonderful words with all of us. इतने अच्छे एक्सपीरियंस है और आई एम श्योर हम सब ने सीखा इस चीज से। अच्छा, अब मैं जैसे कि देख पा रही हूँ यहाँ पर हमारे पास है नीलकमल ओबरा जी। She has joined. She's a retired teacher. I would like her to share her pearls of wisdom with our audience. Are you there? अच्छा, ओके, मे बी शायद डिस्कनेक्ट हो गई होंगी। अभी दिखाई तो मुझे दिए थे पहले लॉट में। ओके, हाँ जी प्लीज आप बताएं प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, यू नॉट ऑडिबल। Hello everyone. हाँ जी। Actually, children face a lot of psychological problems and most of the parents do not understand them. Problem starts when children are not in parents' confidence. Here I want to share my experience. A student of class 7th was very aggressive and always complaining about her classmates. Whenever questions were asked in the class, most of the time she was not able to give answer. On the other hand, her sister in class 9th was very intelligent, loved by her classmates. She took part in every activity, fun classes. Teachers were also surprised to see this difference. Then one day I called her, and after taking her in my confidence, I came to know the actual problem, that she was always compared with her sister. She was always compared with her sister at home, and she always felt very low. I called her parents, told them the problem, and advised them not to compare her with her sister. Her mother was in tears to know that how lonely her daughter was feeling. Though they were not doing it knowingly, parents took my advice positively, and after that we saw a tremendous change in her behavior, and she improved a lot in her studies, and even she made some friends in the class. Thus we see, इस तरह से हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें पता लगता है कि कुछ ना कुछ तो रूट कॉज है जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी पूरी तरह से बुरा नहीं होता, और बच्चे को बच्चा ना समझते हुए एक पूरा इंडिविजुअल की उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमें बच्चे को पूरा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आप तो हमारी रिस्पेक्ट करो, लेकिन हम आपकी कोई बात को नहीं मानेंगे या रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। व्हेन वी गिव, देखिए कि गिव एंड टेक है, आप उसको रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपको निश्चित वो आपको रिस्पेक्ट करेगा। मैंने तो एज ए टीचर एक ही फंडा समझा था, बच्चे को प्यार करो, बच्चा आपको प्यार करता है, और बच्चा आपके सब्जेक्ट को प्यार करता है और वो आपके सब्जेक्ट में पास होता है। ये मैंने इतना जबरदस्त कि कभी रिजल्ट खराब नहीं हुआ। एक बच्चा जो हिंदी में फेल होता है वो इंग्लिश में पास हुआ, उसके पेरेंट्स ने कहा कि मेरा बच्चा कैसे हिंदी में फेल होगा। तो ये बात मैं समझती हूँ कि बच्चों को प्यार की जरूरत है, हाँ एक डिसिप्लिन जरूरी है। थैंक यू ऑन Thank you so much. It's such a wonderful example. ये मैंने आपका थोड़ा सा बताया था, but आपने डिटेल में बताया. This is how one can transform their life. That's really nice. Okay, now we'll move on to the next one. Do we have Dr. Kalpana Rastagi over here? Yeah. Please unmute yourself. You're not audible.
Yes, Dr. Kalpana Rustagi, as I've shared that she's very much liked by the students and all, and इनकी भी बहुत experience है बच्चों के साथ handling के लिए. I want you to share. आप क्या कहना चाहेंगी with respect to the challenges or something regarding to parents? Good evening to all. Am I audible? Yes. Yeah, okay, fine. Ma'am, first of all, congratulations to you for such a wonderful program. और जैसा कि आपने कहा, मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. एक स्टूडेंट था, बहुत डिसेंट और एकेडमिकली भी बहुत अच्छा, पर साथ ही वो बहुत ही पैशनेट था क्लासिकल डांस के लिए, स्पेशली भरतनाट्यम के लिए. जब तक छोटा था तब तक तो पेरेंट्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था. फादर को तो पता भी नहीं था वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत बिजी बिजनेसमैन थे. लेकिन जब वो 9th में आया तो पेरेंट्स को प्रॉब्लम शुरू हो गई, और उन्होंने फादर को जैसे ही पता चला, फादर ने उसको स्टॉप किया कि अब कोई डांस क्लास नहीं, अब सिर्फ आपको पढ़ाई पर ही फोकस करना है, उसी पर पे अटेंशन करना है, और एकदम फुल्ली स्टॉप कर दिया कि कुछ भी अब आप म्यूजिक डांस ऐसा कुछ भी नहीं करोगे. अब बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया, बात करनी छोड़ दी, और रूम बंद होना शुरू हो गया. तब पेरेंट्स परेशान हो गए, और फिर वो आए बहुत ही हैरान परेशान. बस ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी कंडीशन थी कि पैराडाइज लॉस्ट. हम समझ सकते हैं कि पेरेंट्स की जो कंसर्न है वो बहुत जेन्युइन है, क्योंकि पेरेंट्स उसके वेल विशर हैं, वो उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं. लेकिन व्हाट अबाउट चाइल्ड? बच्चा भी तो गलत नहीं है. तो ऐसी कंडीशन में कई बार हम लोग कंट्रोलर बन जाते हैं, जबकि हमें गाइड बनना चाहिए. नेचर एंड नर्चर, ये 2 वर्ड्स हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि नेचर के अकॉर्डिंग करेंगे तो पौधा आगे बढ़ेगा. जैसे जिस पौधे को अगर धूप रोशनी की जरूरत है, और हम उसे, क्योंकि वो सुंदर लगेगा, ये सोच के ड्राइंग रूम में अंधेरे में रख दें तो क्या टिक पाएगा? इसी प्रकार हमें अपने बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या उसके इंटरेस्ट हैं, क्या उसकी फीलिंग्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. तो बस ये लाइफ की उनको रियलिटी बताएं, उनको ये कन्विंस करने की भाई हम तो तुम्हारे वेल विशर हैं, और बैलेंस करें हर एक चीज में. क्योंकि जैसे कुम्हार होता है ना, वो घड़े के भीतर सहारा दे देता है, तो घड़े को टूटने भी नहीं देता, और उसको तराश भी देता है. तो पेरेंट्स का रोल कुछ ऐसा होना चाहिए. और मैं बताना चाहती हूँ बड़े खुशी के साथ कि वो बच्चा आज यूएस में सीनियर आईटी इंजीनियर है, और साथ साथ थिएटर भी करता है, थिएटर आर्टिस्ट भी है. और उसकी जो प्रोफाइल फोटो है वो उसने प्रॉपर भरतनाट्यम की कॉस्ट्यूम में, डांसिंग एक्शन में, डांसिंग पोज में लगा रखी है. तो बस ये ही आपसे शेयर करना चाहती थी. Oh, thank you so much. Thank you so much, Dr. Rustagi. Really a wonderful experience being shared by you. And we'll move on to the next one. Mrs. Baba, are you there? Mrs. Sushil Baba? She's a retired educator, and I want her to share if she would like to share some of her experience here with all of us. Please unmute yourself and put your video on. Okay, I think maybe she's not available. We'll move to the next one. I can see last time Veena Sharma ji was sharing such beautiful tips with respect to parenting, जो बहुत ज़्यादा amazing था. और मैंने कहा था मैं next session में हम parenting का रखेंगे. Then there you can share. Okay, सुशील बाबा जी आप आ गए हैं. वीना जी आपके पास next में आते हैं. हेलो. हाँ पूनम जी, वैसे तो आपने बहुत ही अच्छा समझाया एज ए पेरेंटिंग. I also impressed. Nice. नीलम जी ने बड़ा अच्छा समझाया according to age. और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज ए टीचिंग में, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल. तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट मस्ट बी गिवन. जब तक पेरेंट्स की आपस की म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होगी तब तक बच्चा डिप्रेस ही रहेगा. कई बार अपनी बात भी नहीं बताता, देखेगा हर वक्त इनके आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो वो बच्चे जो छोटे हैं या टीनेज के हैं इस बात को बहुत महसूस करते हैं, और कई बार टीचर की बात को भी नहीं समझ पाते, अंदर अंदर से बहुत परेशान रहते हैं. तो मेरा जानना कहना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल रिस्पेक्ट अगर पेरेंट्स की है
तो मस्ट भी जो बच्चा जाए उसका जो बिहेवियर है या उसका स्टडी लेवल है, इट ऑल्सो परफॉर्मेंस गिवन गुड, द परफॉर्मेंस शुड बी ऑल्सो गिवन गुड। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। हाँ ये ठीक है, पेरेंट्स की भी होनी चाहिए, टीचर का भी मेन रोल है। जब टीचर जब देखेगी कि बच्चा अगर डिप्रेस है तो बड़े प्यार से वो पूछना चाहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो घर का एटमॉस्फेयर किया है या स्कूल में। तो टीचर के रोल में भी यही होता है कि अगर उसको वो रिस्पेक्ट से बात करती है या उसका कंपेयर नहीं करती किसी और से, अरे इतना पढ़ाया है तुम्हें समझ नहीं आता, कई बार टीचर बहुत क्रूरली बोलते हैं, इट इज नॉट गुड वे फॉर टीचिंग। टीचर का रोल भी बहुत बड़ा है। तो यही बच्चे जो है हाँ कल हमारे लिए एक बहुत गुड सिटीजन के रूप में खड़े होंगे हमारी सोसाइटी में। तो ये चीजें जो छोटी छोटी हैं हम काउंट नहीं कर पाते, पर इन्हीं से एक अच्छी सोसाइटी, फैमिली, लाइफ बन जाती है। तो मेन है ये चीजों का ध्यान रखें और उनका एनवायरनमेंट अच्छा हो, हेल्थ की और ध्यान दिया जाए और बिहेवियर अच्छा हो, लैंग्वेज अच्छी हो। इसलिए अगर हम बच्चों में देखें, अगर हम लोग ये भी समझते हैं फेस रीडिंग से बच्चों का टीचर जो है या पेरेंट्स है बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। फेस रीडिंग से फिर बच्चे नहीं बताते। अगर हमने बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से उनको संस्कार दिए हैं तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स बच्चों की फेस रीडिंग उनके अंदर क्या चल रहा है समझ सकते हैं। हाँ ये है कि बच्चा कई बार शाई फील करता, नहीं बता सकता, और उसको प्रेम से प्यार से किसी भी ढंग से अगर उसकी प्रॉब्लम पूछना चाहो तो बता देगा। तो ये भी हमारे पेरेंटिंग लाइफ में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जिससे हमारी सोसाइटी में या हमारे फैमिली उसमें बहुत फायदेमंद है। मेरा जहां तक ये ख्याल है कि एनवायरनमेंट और पेरेंटिंग का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी गिवन। थैंक यू सो मच मिसेस बाबा, आपने बहुत अच्छा बताया। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और ये टीचर्स जब फेस करती हैं पेरेंट्स के साथ पीटीएम में डिस्कस कर सकती हैं। इट्स अ वेरी वेरी पर्टिनेंट पॉइंट जो कि हमारी पूरी सोसाइटी में चेंज ला सकता है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी वीना शर्मा जी, अगर आप हैं तो लास्ट टाइम जैसे आपने बहुत अच्छे बताया था और मैंने कहा था कि कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इफ यू आर देयर प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और वीडियो अपना, आपका शायद ऑन ही था वीडियो, इफ यू आर देयर। हाँ हेलो। हेलो, हाँ जी बोले। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती, आप मेरी बात सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, सबसे पहले तो सभी जो सदस्य आए हैं उनको मेरा नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहती थी बच्चों के लिए कि पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए। एक्चुअली आजकल पेरेंट्स जो है वो बहुत ही कामकाज वाले हैं, तो वो बिजी रहते हैं। तो बच्चों के पास जब समस्या कोई होती है तो वो अपने पेरेंट्स को सुनाना चाहते हैं, पर पेरेंट्स कहेंगे आज सुन लेते हैं, कल सुन लेते हैं, तो इस तरह से वो दूसरे दिन के लिए टाल देते हैं। तो इसलिए बच्चे बहुत टेंशन में रहते हैं। तो बच्चों को माता पिता को चाहिए कि सहज भाव से उनकी बात को सुने अच्छी तरह, और उनकी समस्या, अगर वो उनकी समस्या को अच्छी तरह सहज भाव से सुनते हैं तो उनकी अगर समस्या सुलझ जाती है तो बच्चे का जो मन होता है वो बहुत खुश होता है, वो स्वस्थ रहेगा मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। और दूसरा कि अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको हमेशा अप्रिशिएट जरूर करें, क्योंकि इससे बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और हमेशा वो अच्छा आगे काम करने की कोशिश करेगा। और दूसरा है कि पेरेंट्स जब भी कभी बच्चों की बात सुनते हैं तो कई बार वो बहुत गुस्से में रहते हैं और बोलेंगे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी सुनाओ। तो इस तरह से जो बच्चे होते हैं ना वो अंदर से परेशान हो जाते हैं, तो वो माता पिता से दूरी बना लेते हैं। अगर माता पिता सहज भाव से उनकी बात सुनेंगे तो बच्चे हमेशा माता पिता के साथ जुड़े रहेंगे। वो कहते हैं ना लव बिगेट्स लव। अगर बच्चे पेरेंट्स माता पिता बच्चों को प्यार करते हैं तो बच्चे भी माता पिता को प्यार करते हैं, तो उनमें दूरी नहीं रहेगी। तो इसलिए उनका जो बिहेव है ना बच्चों के साथ वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये मैं थोड़ा पेरेंट्स को भी सुझाव देना चाहूंगी, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप अच्छे संस्कार दोगे अपने बच्चों को
तो उनके अंदर बहुत अच्छे संस्कार आएंगे और वह जीवन में हमेशा ही उन्नति पाएंगे। यस, थैंक यू पूनम जी। Ma'am, I want to Sheena ji, thank you so much. I want now संतोष सचदेवा जी, अगर आप हैं तो आप भी टीचिंग लाइन में रह चुकी हैं, तो आपके पास भी बहुत ज्यादा भंडार होगा, तो एक छोटा कुछ भी आप जो कहना चाहती हैं प्लीज फील फ्री टू शेयर। आप हैं क्या हमारे साथ यहाँ पर? नमस्कार सबको। हाय, नमस्कार जी, नमस्कार। Am I audible? यस, बताएं। कंक्लूजन सब बातों का यही है कि a child is happy when the parents are happy. When parents are happy, parents play with his children. In Corona period, children need your help, your care. They want to quality time with you. You have to give time. Parents have to give time. They tell them their experiences, चुटकुले, शरारतें अपने बचपन की बताएं, कुछ भी बताएं, उनको इन्वॉल्व रखें ताकि बच्चों को वो अपना दोस्त समझे, अपना पार्टनर समझे, अपना बच्चा नहीं समझे। बच्चा समझेंगे तो वो बच्चे ही बन के रह जाएंगे। छोटे बच्चे को भी हम पार्टनर समझ सकते हैं और उसे अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। पेरेंट्स आर द रोल मॉडल, जैसा कि आपने कहा, जैसा पेरेंट्स करेंगे वैसा ही बच्चे करेंगे। मेरी पोती 11 साल की है और वो एक दिन मेरे को अपना एक्सपीरियंस बता रही थी, तो एक्सपीरियंस बताते बताते उसने ये बताया कि मैं हिंदी में थोड़ी सी वीक हूँ। मैंने कहा चल आजा। मैं पेपर पढ़ रही थी, उसी को पेपर पढ़ाने लग गई। ना जाने पेपर में ही मैंने उसे कितने वर्डिंग ऐसे बता दिए जो उसे नहीं आते थे। हंसी हंसी खेल खेल में बहुत सारी बातें बता दी। स्कूल में तो हमारा यही हाल ही होता था कि स्कूल में क्लास में जाना, मैंने कभी बच्चों को चुप नहीं कराया। जाते ही गायत्री मंत्र शुरू, और गायत्री मंत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला है। सबसे बड़ी बात, हमारे माइंड में शांति पैदा करता है। तो जैसे ही गायत्री मंत्र बोलते बच्चे अपने आप खड़े होते, पहले फिर गायत्री मंत्र बोलकर बैठ जाते, किताबें खोल लेते। मैंने कभी बच्चों को ये नहीं कहा ओपन योर बुक्स और स्टडी योरसेल्फ और कुछ भी, कभी नहीं कहा। और जाते ही अपना शुरू हो जाते थे पढ़ाना, लेक्चर देना शुरू हो गया। और बच्चों ने देखो, लास्ट टाइम जिस साल में रिटायर हुई उस साल भी 95 से अबव 18 बच्चों के मार्क्स थे 12th में। जस्ट इमेजिन, पॉलिटिकल साइंस में 95 से अबव 18 बच्चे थे जिनके इतने अच्छे मार्क्स आए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बच्चों के साथ यदि हम दोस्ताना व्यवहार करेंगे तो बच्चे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं। 2 लाइनें कहना चाहूंगी। महक उठेगी दुनिया सारी, महक उठेगी दुनिया सारी, जो तुम हंसी के फूल खिलाओगे। महक उठेगी दुनिया सारी, जो तुम हंसी के फूल खिलाओगे। दुख दर्दों को सारे भूल कर तन मन से स्वस्थ हो जाओगे। यदि पेरेंट्स स्वस्थ होंगे तो बच्चों को स्वस्थ बना सकते हैं। बच्चों में अच्छाइयाँ ढूंढें, उनकी प्रशंसा करें। बच्चे अपने माता पिता से दोस्ताना व्यवहार करें और पेरेंट्स भी दोस्ताना व्यवहार करते हुए जिंदगी को खुशनुमा और आसान बनाए, जिंदगी को आसान बनाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच संतोष जी, कितना अच्छा आपने बता दिया सबको। आई एम श्योर सबने काफी गेन किया होगा। अच्छा, अब कोई अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है जो हमारी ऑडियंस है तो वी विल टेक 1 or 2 क्वेश्चंस, अदरवाइज हम आगे इसको थोड़ा बाइंडिंग अप की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से हमने कवर तो काफी कर ही लिया है ऑलमोस्ट, और कुछ रह गया है। शेयर द क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, वी विल हैव द नेक्स्ट सेशन, उसमें हम द मंथ ऑफ सितंबर विल टेक ओवर ऑफ दैट। मैं कहना चाहती हूँ उन बच्चों को जो कई बार अपने बहुत मेहनत करते हैं और फिर थोड़ा हौसला छोड़ देते हैं, तो उनके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहती हूँ कि उनका उत्साह बढ़े। उन बच्चों का कहते हैं, टूटने लगे हौसले जब, टूटने लगे हौसले जब, तो इतना याद रखना
बिना मेहनत के कभी तख्तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के कभी तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं मंजिल वो अपनी अंधेरों में भी, क्योंकि ढूंढ लेते हैं मंजिल वो अपनी अंधेरों में, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। Thank you so much, Meena ji. So well said. Okay, now before I end, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि first of all, thanks to Rishita Gulati, who has introduced me, and a very brief introduction about her. She's a psychology graduate, a very talented girl, और जो मैं discuss करती हूँ 1 मिनट में उसको समझ में आ जाता है, and she's able to understand the things so well. ये आज के बच्चे की जो मैं कहती हूँ ना बड़े fast और अच्छे हैं. She's one of the examples, and she's a mental health advocate also, very good at technology part. And then secondly, thanks to Meena Nangia ji, जिन्होंने आज अपने आप मतलब कहा कि yes, I would like to take the screenshots and share it with you later on. Really, thank you so much, and thank you to all the people who have helped me and creating the slides, and otherwise those who have shared the valuable points over here. And yes, the lovely audience, those who have been patiently listening and trying to absorb and try to get the maximum out of the session. Thank you to each one of them, and to Book My Session as well, because for providing me with a platform so that my words can reach to the maximum number of people. Thank you so much. And with that, I think we'll take an end and we'll meet in the month of September. The date will be notified. और उसमें देखते हैं आपका कोई suggestion है, आप लोग email पे मेरे साथ आ सकते हैं, आप बता सकते हैं. Phone number काफी लोगों को मालूम है. Recording में आप last case में से देख सकते हैं. And another thing that I want to announce here, that is very important. If someone is interested, the students or anyone, those who are interested in offering the services as volunteer for psychic support group that I have, the organization that I have, so please, you are free, you're more than welcome. यहाँ पर any type of help in the sense like अगर आप content writing में if you're good at it, technology में आप अच्छे हैं, or anything that you feel that you can offer it to this organization, we'll be really glad to have you here. So what you can do is you can drop in a mail at poonam.com, poonam.kamdar@1970@gmail.com, and my phone number is also mentioned in my earlier session. The recording you can see it is available on Book My Session Live as well. Thank you so much to everyone, and looking forward to your presence for the next session as well. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Poonam ji. बहुत अच्छा प्रोग्राम था. Thank you so much for joining. पूनम देखो. Thank you, Poonam ji. Thank you. करेंगे ताकि सभी अच्छे विचार अपने पूनम जी को साझा करें और पूनम बच्चों के उत्साह बढ़ाने का कार्य करे. Thank you so much. The blessings and wishes always mean a lot. थोड़ी सी Thank you.